आज हम संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस सेवा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन 8 सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का भी स्मरण करते हैं, जिन्होंने इस हमले को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस आतंकवादी हमले में एक सीपीडब्ल्यूडी कर्मी भी शहीद हुए थे। ये सभा उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ये सभा उन शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति के साथ और दृढ़ता के साथ खड़ी है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का डटकर सामना करने के अपने संकल्प को भी दोहराते हैं तथा अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पुनः शपथ की पुष्टि करते हैं। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। आज हम लोकसभा में आज मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदियन जॉलजी एंड माइनिंग हंद मामले वतलावान मरकजी सरकार मंग कर्म अत महकमस मज काम करन वल डेलीवेज मुलाजिम मुस्तकिल करनस तो खाली असाइम पूर करनस हवाले गछन संजीद कदम तुलन यीन युद्ध जन इलीगल माइनिंग पे रोट लागनस मज मदद मिले। There has been a long spell of presidential rule in Jammu Kashmir, so there, because of absence of an elected government, there is a huge governance deficit. So that has resulted in, leaving the manpower crisis in key departments of the state. See, one of in healthcare system it is working on 40%, and there is a bold and honest admission on part of the Honorable Minister that out of the sanctioned posts in different categories, non-gazetted and gazetted and multitasking, there is less than 50% are in place. So the direct result is that it impacts. First result is that it emboldens people to go for illegal mining when we don't have sufficient staff. Second is, sir, the people are overstepping, are unilaterally enlarging their areas that have been allotted to them for mining. So that because of lack of supervision, there is less staff and there is lack of supervision. Sir, though it is stated in the reply that some steps have been taken to get the recruitments made, but not enough is being done. I would request the Honorable Minister to ask the UT government to expedite the selection process. And in the meantime, as some 50 employees of J&K Cements have been already deputed, I would suggest that first the delegated workers now in Geology Mining Department be regularized. Second is that we have 51 from delegated workers from Jammu and Kashmir Cements Limited. They can also be deputed. Sir, I would request the government to consider regularization of the delegated workers and also deputation of these extras. Third is, sir, government should also take steps for demarcating the areas which have been allotted for mining to different factory owners, including the cement factory owners in free of convert Wuhan area, because the lack of staff has emboldened the entrepreneurs to go unilaterally expand there, and there is a conflict between local population and administration. There has been a long spell of presidential. यपर मरकजी वजीरन हसनैन मसूदी सिंध सवाल जवाब दिवान वोनमुत जम्मू कश्मीर सरकार तरफ अमे हवाले मरकजी सरकार रिपोर्ट पेश करना आमुत यल जन मरकजी वजारत तरफ जम्मू कश्मीर सरकार हिदायत दिन आई जे इलीगल माइनिंग पे रोट लागनस हवाल गसन संजीद कदम तुलन यीन युद्ध जन इलीगल माइनिंग पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। Concerned now, the situation has been almost normalized in the Jammu and Kashmir. Otherwise, everybody knows what was happening before, especially 2019 and especially in past 2-3 years. Lot of improvement is there in the overall situation.
By that, now people are expecting in almost every sector that there should be progress, and I appreciate Justice Saab that he has asked a very good question. And as the information given by the Jammu and Kashmir government, the recruitment process is on, and it is a fact that some of the posts are vacant, and now we have found out a lithium also there. The auction also we have put it for the auction. Auction process is on. Keeping all that in mind, we have advised all the states जो आपके माइनिंग डिपार्टमेंट और जियोलॉजी के डिपार्टमेंट में जो खाली पद है उसको भर्ती करने के लिए हमने निवेदन कर रहे हैं. इसका एक तो जम्मू एंड कश्मीर में तो स्थिति अलग है और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बहुत बढ़िया कोशिश तो कर ही रहे हैं और इसका आंकड़ा तो मैंने दिया हूं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूं. जिसके लिए प्रमोशन के थ्रू करना है एलिजिबल कैंडिडेट भी नहीं है, ये भी एक इश्यू है. दूसरी बात तो ये तो लेगेसी इश्यू है, जो पहले से जो 10-15 वर्ष से जो है उनको अभी प्रमोशन देना पड़ता है, लेकिन आज के दिन में तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो है नहीं है. तो इसके कारण बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह शुरू किया है, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय को मैं आग्रह. शुमाली कशीर हिंदिस करना कपवारिस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज वकार रसूल वनिस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर. अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन. काफी लोग आज जलसे में आए थे और हमने इनको कांग्रेस की जो प्लानिंग है उसकी बात की. यहाँ पे लोग काफी सफर कर रहे हैं, यहाँ पे एक टनल की बहुत ज्यादा जरूरत है. सर्दियों में पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है, लोगों को प्रॉब्लम आती है. 2 किलोमीटर टनल बनाने से कोई खजाने में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बात सुनिए ना, 2014 तक रहा. देखिए नहीं रही, हो सकता है हमारी रिप्रेजेंटेशन न रहने की वजह से ऐसा हुआ हो. एक वो बड़ी प्रॉब्लम है, अस्पतालों में स्टाफ की प्रॉब्लम है, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो लोगों की है वो बहुत खराब है. आज भी 50% से ज्यादा लोग जो जिनके पास थोड़ी इकोनॉमी अच्छी है वो जम्मू और श्रीनगर दूसरे इलाकों में चले गए हैं, वो आप गर्मियों में यहाँ हैं. यहाँ पे आज जलसा जो था वो उन लोगों का था, उन गरीबों का था जो यहाँ रहते हैं सर्दियों में भी. इनकी परेशानियां देखने की जरूरत है, जो यहाँ 6 महीने सर्दियों में रहते हैं. इनके पास राशन का इंतजाम है, इनको सरकार देती है 5 किलो राशन. 5 किलो से क्या बनेगा? कांग्रेस आएगी तो 15 किलो देगी, 5 किलो से कुछ नहीं बनेगा. अब जो घर में बैठा है ना उसके पास खेती है ना बाड़ी है, यहाँ पे बर्फ पड़ गई तो 5 किलो से 6-6, 8-8 लोगों को कैसे पालेगा वो? राशन की बात है, अस्पतालों में स्टाफ होना चाहिए, ये बड़ी प्रॉब्लम है. यहाँ पे लोगों की जितनी मुश्किलातें हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत है और यहाँ स्पेशल भर्ती कराने की जरूरत है. वहां पे भी हमने रोशनी डाली. आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम यहाँ रहेंगे, पूरे इलाकों में जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारा नुमाइंदा जो है कांग्रेस पार्टी से यहाँ जीते. पूरे दुनिया में ईवीएम्स बैन हो, 120 मुल्कों ने ईवीएम्स को खत्म कर दिया क्योंकि वो हैक होती हैं, उसमें चिप लग सकती है, उसको कम किया ज्यादा किया जा सकता है. पूरे यूरोप ने, ब्रिटानिया ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने, कनाडा ने, ब्राजील ने, सब ने बैन कर दिया. यहाँ क्यों खड़ी है? बीजेपी का है ना. वहां पे बीजेपी थी नहीं, अगर थोड़ी बहुत होती तो वहां पे बीजेपी, वहां थी नहीं, वहां बीजेपी का वजूद ही नहीं है. वहां बीआरएस और कांग्रेस का मुकाबला था, क्योंकि मैं वहां गया था, इसलिए वहां नहीं. वादी कशीर मज ये रात हंदिस दर्जा हरारतस मज नुमाया कमी इन सर्दी मज हुरर सपदमुत तत महकमे मौसमियात को जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इन वलिस हफ्तस ताम वादी मज मौसम खुशक रोजन इम्कान. ताहम हे 10 दिसंबर पे वादी हिंदन बालई इलाकन मज कुन कुन जाय हल्क शीन पे. कंटिन्यूसली ड्राई चल रहा है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर और कमिंग डेज में भी कोई मेजर एक्टिविटी अभी के हिसाब से लग नहीं रहा है और लगभग 22 दिसंबर तक जो है कोई भी मेजर वेदर एक्टिविटी नहीं है. अलबत्ता 16-17 को एक फीबल WD है जिसके कारण जो है थोड़ा सा क्लाउडीनेस होगा
और कुछ एक हायर रीच में थोड़ा लाइट पॉसिबिलिटी भी है। अदर देन दिस कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल लगभग 22 दिसंबर तक नहीं है। इसी बीच दर्जा हरारत में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और मनफी 5.3 यहाँ श्रीनगर में, इसी तरह शोपियान के अंदर -6, बाकी जगहों पे भी खासकर हिल स्टेशन में -5 -6 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है और कमिंग डेज में भी कोई मेजर चेंज होने वाला नहीं है। मनफी 5.5-6 तक भी जा सकता है मैदानी इलाकों में और जो हिल स्टेशन से वहाँ पे -6 -7 तक भी कमिंग डेज में टच कर सकता है। तो फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं है। कोल्ड एंड ड्राई वेदर कंडीशंस मोस्ट लाइकली टू कंटिन्यू टिल 22 ऑफ दिसंबर और इस बीच 16-17 को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ सकता है दर्जा हरारत में, क्योंकि थोड़ा क्लाउडीनेस की वजह से मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी हिंदो जिम्मेदारों तो दोयमन मुलाजिम अंजुमन हिंदो जिम्मेदारों तरफ चीफ सेक्रेटरी अतुल डलुआ से जुमिस मज मुलाकात कर्मुत यथ दौरान तिमो मुलाजिमन दरपेश मुश्किलन हवाले चीफ सेक्रेटरी जान दिज। यल जन टीचर्स फर्म के जिम्मेदारों तरफ वन आव ज मीटिंग च खुशगवार माहौलस मज अंद वचम तो तिमन च वमेद ज मुलाजिमन हिंद मसलन रावनस हवाले संजीद कदम तुलने। एक्चुअली जो हमारी चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग थी वो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जिसकी सरबराही एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वजाहत दुरानी साहब वो कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी इंट्रोडक्टरी और उसका वेलकम सेटअप का मीटिंग थी। लेकिन हमने उसको कुछ बातें दोहराई कि हमने उन्हें कह दिया कि मुलाजमीन जो है वो अपने आप को कुछ दूर महसूस कर रहे हैं। एक सिस्टम जो है, सिस्टम के मुलाजमीन जो है वो सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और जितनी भी पॉलिसियाँ आप यहाँ से बनाते हो तो मुलाजमीन जो है वो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पर असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की जितनी भी बातें हैं वो हमने उनके सामने रख दी और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी उनके साथ मामलात के हवाले से, मसाइल के हवाले से। और हम बड़े मुतमईन हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो श्री आलोक कुमार डल्लू साहब ने जो ओहदा संभाला और उसके बाद जिस अंदाज से उसने काम शुरू किया, शायद एक नए बाब का आगाज होगा। हम ये भी कहेंगे कि जो हमारे पहले चीफ सेक्रेटरी साहब थे उसने भी अच्छा काम किया, लेकिन इनके काम करने का अंदाज जो हमें लगा वो बिल्कुल अलग होगा और निराला होगा। जनूबी कश्मीर हिंद त्राल के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवई छचकूट त्राल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हवाले 1977 मज काम शुरू करना आई युद्धन इलाकन जमींदारन जमीन साग दिनस मज आसानी सपद ताहम चुना आज ताम यह स्कीम मुकम्मल करना आमत यमकिन जमींदारन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी जमींदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज स्कीम मुकम्मल करने हवाले गन संजीद कदम तुलने yin युद्धन जमींदारन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। यह स्कीम गमज कछकूट स्कीम 1977 मज इरिगेशन 1977 पे 1977 पे वो गो 2023 मज ताम तंकस वातान आब तथ टाइम ये सात तथ टाइम जरूरत तथ बरक्स वंदस काम लागन सिर्फ खजाना बरन पन्न यह सा यह ठेकदरन बे पन्न अफसरन अस करे वारिया लट गुजारिश अस वनो मे वोन बार बार लिख मे अत पे यह बुनियादी गछा यम सात 1 किलोमीटर टनल गई 5 वरियन तैयार यह गई 1900 यह पोसन हूं जरिए रुपयन हूं जरिए अगर यमो ओतर सीजन तम सात त्रोक आब तम ब्रोट कर मरमत यम सात वो आब मोकलियो वनकन लग यमो मरमत करें गवर्नमेंटस बे अपील करान अगर यह डिपार्टमेंट दीहू विजिलेंस क्राइमस अत नेरन चूर नान अम सह कहीं फायदे अस वो तम सात यह हसा सिर्फ तो सिर्फ रुपये जेन खतर ठेकदरन तो यमन दरमियान लिहाजा कर बे गुजारिश करान यम करें यह वनकन बंद अत यी मौकस पे ये खातर यह आब वातान यह वनुक ताम वोत यह जही अम यह सिर्फ रुपये कड़ने खतर मुतालबक इरिगेशन कनाल 1977 मज आमुत संग बुनियाद त्रावन तन पे लाजक गलब रुपये मगर आबा छो जा वम आज काम करान यह काम लग अजिच कुन कि ये शु गसान शु सह डैमेज गसान अजुक रकम कत लग बे चो तन पे आबा कहें अस वत आराम
DC साहब तम सात दिवान कनेक्शन आबस त्रो मगर अमुक आब चोमुत जा बा खुदा जन बहुत वस बहुत 7 वूर मगर मे वुच ना अमुक आब जा ना अमुक आराम खाली खर्चा रुपये योत। महकमे ज़राअत एनफोर्समेंट विंग तरफ आज जिले पुलवामा मज खसूसी मुहिम शुरू करने आमुत यथ दौरान जिलस मज खाद कन वालन डीलरन हिंद नरकनाम चेक करने सलाह कामि कार इख्तिसाम हनाय अत मौके पे ये डीलरन सरकारी नरकनामन पे अमल करने सख्त हिदायत दिन आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यह मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन जमींदारन ताम माकूल खाद वातनावनस मज आसानी सपदि। है कंसाइनमेंट है पोटाश। इस वक्त ये जर्नल इंस्पेक्शन चल रहा है कि कितना माल हमारे उधमपुर रेक पॉइंट से आया है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लिए। आपके माध्यम से मैं तमाम ज़मींदार भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के तहत जो कंट्रोलर फर्टिलाइज़र जो UTF JNK ने रेट लिस्ट निकाला है उस रेट लिस्ट से उस रेट लिस्ट पर हर किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का रेट दिया हुआ है। तो मेरी ये मोतबाना अपील रहेगी अपने फार्मर्स को कि वो यूरिया एक बैग 266 रुपया 50 पैसा ले और DAP का जो रेट है वो 2700 रुपया 2 बैग यानी 1 क्विंटल और जो MOP का रेट है वो 3400 रुपया 2 बैग 1 क्विंटल। अनंतनाग पुलवामा कोलगाम से कोई ज्यादा रेट चार्ज करेगा उसके लिए वो अपने कंसर्न एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करे। रीलान मेंढरस मज हजरत बाबा फतेह सईद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ते हजरत बाबा मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सालाना अरस नहायत अकीदत एहतराम सान मनावना आमुत यथ मज मुख्तलिफ इलाकों पे आमतन अकीदत मंदन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव दोन दोन ताम जारी रोजन वलिस अत सालाना अरसस हवाले तमाम इंतजाम करना आमुत युत जन अकीदत मंदन मुश्किल बेहतरीन पेन। अल्हम्दुलिल्लाह आज बोजा गोलत गाली सजदा में सालाना उर्से पाक हाज़िर किबला बाबा फतेह शाह रहमतुल्लाह अलैह बाबा मीरा शाह रहमतुल्लाह अलैह ये सादात किराम का वो ख़ानदान है जो हमारे आबा और अजदाद से जिनकी तारीखें मुसल्लमा चली आ रही हैं और ये बड़ी ही फैज़ रसां खानका है। इस खानका पर सालाना उर्से पाक आज मुनक्किद हुआ। आप किबला हाजी जाकिर हुसैन शाह साहब के एहतमाम में ये इंतज़ाम और इंसराम इनके पास था और बड़ी शान शौकत। पिंगलिश त्रालस मज आज विकसित भारत संकल्प यात्रा हवाले प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों अवामी नुमाइंदों मुकामी लोगों तलब शिरकत कर अत मौके पर यह तकरीब मौजूद लूकन मरकजी सरकार चंद स्कीमन हवाले जान दिन आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद यन प्रोग्राम हंद सांस कर मकसद ज आम लूकन यह स्कीम हवाले जान दिन युत जन लूक आसानी सान यमन स्कीमन हंद फायदा तुलित हेकन। So जो भी sectoral officers I would like to request all the sectoral officers come. Bharat Sankalp Yatra and I hope to create awareness and ensure. जो आप बोल के ना सिचुएशन की बात करते हैं, अगर मैं रूरल डेवलपमेंट से ही शुरू करूं तो अगर हम PMAY की बात करेंगे आज के डेट में हमारे ब्लॉक में PMAY सैचुरेटेड है। अब पानी की बात करेंगे JJM में पानी वाला सैचुरेटेड हर एक गल में नल है वो सैचुरेटेड है। अब आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड्स की बात करें मेरे डॉक्टर साहब मेरे दाएं बैठे हुए हैं तो सैचुरेटेड है। तो इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि पिछली बार हम यहाँ लालपुरा में गए थे, वहाँ PM उज्ज्वला योजना में अगर कोई अनकवर्ड हैबिटेशंस थे कुछ फैमिलीज थे वो भी सैचुरेट हो गए हैं। ठीक है, अभी अगर कहीं पे ज़रूरत होगी सैचुरेट करने की, ये प्रोग्राम ही ऐसा है कि जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका जो एम है दैट इज़ टू रीच द अनरीच्ड, जो अभी हम जो विकसित भारत वगैरह कर रहे हैं यही मोटिव है कि जो अभी उस हर शख्स के पास
تو ناظرین ات ووت کوشر خبرنامہ ان 7 بج سپدو تہ بے ملاقات فی الحال دیو اجازت خدا سوال